Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. What a fantastic game of cricket today. Finally, अब हमें लगा कि यार वाकई हम वर्ल्ड कप का मैच देख रहे हैं, where it was a closer contest, where there were emotions, where there was drama, where there was so much in it in this game as well. But let's see, let's unpack where did Pakistan go wrong, and certainly South Africa from here onwards won't be referred to as chokers. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. आप लोग देख रहे हैं the post match analysis on Game On है और मेरे साथ मौजूद हैं Miss Roha Nadeem. Hello Roha, Assalamu alaikum. How are you feeling today? Walaikum assalam, Shahzad. Thank you. It's good to be here. Thank you to everyone who's joining us now on Game On है. टिश्यू पेपर मेरा पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया है अभी. I'm trying to like just not tear up. It's alright. Shahzad can act very well. I cannot. But from what you said, I agree with that. At least we had a close game. हम कब से कहते रहे जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है कि आज क्लोज गेम होगी और I think सुन ही ली गई हमारी. But in the end, not the ideal result for Pakistan fans. Exactly. Roha, even if it's not the ideal result, but the way they have played, the way they were in the field, the way they tried putting in their best effort, I think that's something that we all need to appreciate. So first of all, big round of applause for both the teams. और मैच से पहले मैंने आज कहा भी था शो में कि आज रिजल्ट जो भी हो, जो इंटेंट जिसकी हम बात करें, तो जो एक बॉडी लैंग्वेज, जो स्पिरिट, जो फाइट जो पाकिस्तान से मिसिंग थी लास्ट 2-3 गेम से, वो आज नज़र आएगी. आज एक डिफरेंट टीम थी ऑल टुगेदर. जो कमियां थी उसके ऊपर अभी हम बात भी करेंगे, आइडेंटिफाई भी करेंगे. बट अदर देन दैट, दिस वाज अ डिफरेंट टीम. दिस वाज द यूजुअल पाकिस्तान टीम दैट वी सी and that we are used to seeing. Exactly, and we will always back our boys no matter what. We are still pretty much in the game as well. But without any further ado, ladies and gentlemen, introducing our worthy panel over here inside the PTV Sports Studios, Islamabad Studios rather. सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बादल खान. बादल भाई, अस्सलाम वालेकुम. एक बार फिर से वेलकम बैक. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you alongside him. We're very lucky that here we have been joined by somebody whom a Pakistani team have relied on as a left arm pacer. Even today, we thought that that's going to happen. Shaheen ने बहुत ही उम्दा bowling कराई. But ladies and gentlemen, the left arm quick himself, he is Mr. Wahab Riaz. Assalamu alaikum Wahab. Walaikum assalam. How are you? I'm good जी. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. जहाँ पर obviously जब हम आज की गेम की बात करेंगे, जहाँ पे स्पिनर्स को शायद अनफॉर्चुनेटली आखिरी ओवर कराना पड़े, स्किपर अपने सारे चांसेस ले, वहाँ पर मेरा ख्याल है कि जब भी हम बात करेंगे इस खिलाड़ी की, इन्होंने भी पाकिस्तान का हमेशा सर फख्र से बुलंद किया. ख़वातीन और हज़रात, we're very lucky that we've been joined by the former skipper for Pakistan cricket team. He is Mr. Mohammad Hafiz. अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, how are you? वालेकुम अस्सलाम. आप दोनों को और रोहा बहुत ऊपर जाओगी. कहना 9 सुनाना 3 की क्या सी तुसी. All right, thank you so much Hafiz bhai for joining us. Wonderful to have you over here. Last but not the least, ladies and gentlemen, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर, बैटर और आज का अंदाजा बिल्कुल ठीक लगाने वाला है मिस्टर राशिद लेती. राशिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. तुक्का लग गया सर. नहीं, आज सबसे पहले सबको वेलकम करते हैं. दोबारा से हम फोरम पूरा हो गया और पैनल कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह. और आज बम्बार्टमेंट होगी. नहीं सर, कोई बम्बार्टमेंट नहीं होगी. आज तो जिस तरह से माशाल्लाह हमारे बॉयज ने खेला, हम चाहते थे कि पिछले गेम्स में भी इसी तरह खेलते हैं. बाजी भाई, सबसे पहले आई वुड वांट योर रिएक्शन ऑन टुडेस गेम एंड देन विल मूव ऑन. सर्टेनली, प्लीज गो अहेड. देखिए, सुबह बात हुई थी कि बैटिंग को मैच जिताना चाहिए. आप 20 बॉलें छोड़ के आ गए. बिल्कुल. तो मैच हम आखिरी बॉल पे डिस्कस करेंगे ना कि जी आखिरी बॉल किसको, ओवर किसको देना चाहिए. लेकिन वहाँ तक नौबत तब आती है जब आप खुद चीज़ें, मतलब जो मार्जिन तो छोटे ही होते हैं, अच्छी टीम से खेलोगे, लेकिन खुद अगर आप चीज़ें छोड़ के आओगे तो वो फिर आपको हिट ज़रूर करती हैं. आप 20 बॉल छोड़ के आए, फिर आप देखिए मिस्टेक्स अगर देखें ना तो माकरम के मेरे अंदाजे से 3 दफ़ा चांस था रन आउट का, 3 दफ़ा. तो अगर अटेंशन टू डिटेल, वो कह रहे हैं जी फाइट ठीक है, सारा कुछ ठीक है, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, बहुत फाइट की जी, लेकिन ओवर द लाइन वही टीम जाती है जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती है. करते. और अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार आई, मौका आया और आपने ग्रैब नहीं की. तो अगर 4 में से 4 मैच हारे हैं तो ये मेरे ख्याल, इसमें कोई आपसे भी कोई भी पूछेगा या किसी से भी इस पैनल में पूछ लें कि आया कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती थी या पाकिस्तान खेला ही खराब, बताएं. I think at this point of time मैं जरा सबकी नजर भी डलवाना चाहता हूँ the match summary as well. आज के मैंने 4 के 4 मैच हैं. नहीं, 6 में से 4 करें ना, 4 के 4 ना करें प्लीज. आइए जी, let's go towards the match summary as well, ladies and gentlemen. We're taking a good look at the match summary. Obviously Pakistani skipper Babar Azam, after winning the toss, decided to bat first,
And that's something that we were talking about, that it would have been a better idea rather, but I think that where Basil bhai have already spoken कि यार जो हम 20 बॉलें पूरी नहीं खेल के, that will definitely hurt us as well. Babar Azam with another half century as well retains the #1 batter in ODI. Not just that, it was our middle order today who actually showed the entire grit as well, where Rizwan with 31, Iftikhar with 21 as well. Iftikhar jumping up the order, but that's something which was advised. We have the experts over here who certainly did advise that. Saud Shakil with another half century. But if we move on towards South Africa, there's only one name which certainly needs to be out there, and we need to speak about that particular name, and that's Aiden Markram. This was the opportunity that Basil Bhai was talking about that we really needed to seize. But ladies and gentlemen, on the other hand, I think towards the end, the Pakistani bowling did a phenomenal job. But first, Afridi with 3 wickets over there. And Usama, a blessing in disguise, where Shadab unfortunately dislocated his shoulder cuff. And then, Usama had to come in, and 2 wickets for Usama over here. Then Mohammad Wasim again. But on the other hand, it was Shamsi, Jensen and Coetzee. And once again, South Africa winning by 1 wicket. well, इस हार का जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो पड़ा है पॉइंट्स टेबल के ऊपर. पाकिस्तान जो है नंबर 6 पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है. 6 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस पाकिस्तान ने अभी तक जीते हैं, 4 हारे हैं. एंड विद ओनली 4 पॉइंट्स वी आर अनफॉर्चुनेटली बिलो दैट टॉप 4 स्पॉट. लेकिन साउथ अफ्रीका इस वक्त जो है बहुत सिक्योर नजर आ रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल. 6 में से 5 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं, 10 पॉइंट्स. और जो उनका नेट रन रेट है इस वक्त पॉजिटिव 2.032. यहाँ पे ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट थे ही फॉर साउथ अफ्रीका, लेकिन वही जो हमने बात की कि साउथ अफ्रीका ने उनके लिए खाली आज जीतना ज़रूरी नहीं था, एक चेस करते हुए जीतना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो अभी तक उनकी वर्ल्ड कप कैंपेन में मिसिंग था. हमने उसके बारे में भी बात की कि क्या आज वो अपने फॉर्मूला से हटकर एक कन्विंसिंग तरीके से जीत सकेंगे. और देखने में काफ़ी क्लोज गया मैच, उस पर भी बात करेंगे. बट वहाब, बिफोर वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज और पूरा रिजल्ट, और हम सब पे फोकस करेंगे, बिल्कुल अभी फ्रेश जो मेमोरी है वो DRS रिव्यू डिसीजन है. हारिस रऊफ की बॉल पे अंपायर्स कॉल दे दी गई, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, जिस तरीके से बॉल लगा है, जो फर्स्ट आप देखते हैं, आपका जो फर्स्ट विजन अगर आप उसको देखें तो ऐसा लगता है कि वो आउट था और अंपायर को आउट देना चाहिए था. दैट वाज अ वेरी क्लोज कॉल. ऑब्वियसली उसको जो हॉट पॉट उसने दिखाया है कि क्या कहते हैं, बॉल जो है वो क्लिक कर रहा है और अंपायर्स कॉल आ गई है. बट आई थिंक एज एन अंपायर यू शुड हैव गिवन इट स्ट्रेट अवे. जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस करके प्लम जो है वो बिल्कुल लगा उनको बॉल, तो दैट शुड हैव बीन गिवन आउट. बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. होता है ऐसा कि एट टाइम्स डिसीजन जो है वो आपकी तरफ चले जाते हैं, एट टाइम्स आपकी तरफ नहीं जाते. बट ऑब्वियसली एज अ फैन, एज अ क्रिकेटर, आप और एज अ पाकिस्तानी आई वुड हैव सेड कि नहीं यार ये आउट देना चाहिए था. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं होता है. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है बॉलर्स के लिए. देखिए जिस तरीके से आज पाकिस्तान टीम ने फाइट शो की है, दैट वाज अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से सारे खेले. द बॉडी लैंग्वेज वाज देयर, एवरीबडी मेंट एवरी बॉल. फील्डिंग में आज आपने देखी कि वो भी बेहतर थी. उसके बाद ग्राउंड में प्रेजेंस बेहतर थी. एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही थी आज. तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी पॉजिटिव. और जीत जाते तो उससे भी अच्छा था. बट आई थिंक जिस तरीके से खेले हैं, आई थिंक दे प्लेड रियली वेल टुडे. हफीज, आपसे मेरा सवाल ये है थोड़ा सा कैप्टनसी के बारे में. डिड यू सी एनी चेंज इन द वे बाबर वाज आउट देयर मेकिंग चेंजेस विद द बॉल, विद द फील्ड? कैसे रेट करेंगे आज बाबर की कैप्टनसी को आप? मेरा ख्याल है कि मैंने जितना बाबर को कप्तानी करते हुए देखा है, ये उनकी बेस्ट मुझे आज नज़र आया, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतर जगह पे चेंजेस की जो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी थी. जैसे उसामा को 40 ओवर के बाद जो उन्होंने ओवर दिया, दैट वाज स्पेशल. नहीं तो नॉर्मली आई नो कि बाबर स्पिनर को इतना अच्छा वेल यूटिलाइज नहीं करते. मेरा ख्याल है दैट वाज अ वेरी गुड प्लानिंग. फिर शाहीन को जैसे वापस लेके आए, हारिस की जैसे बॉलिंग करवाई, ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड. लाइक ऑब्वियसली वी कुडंट विन द गेम, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जाऊं तो दैट वाज देयर. बैटिंग में आई वाज रियली हैप्पी द वे शादाब एंड साउद फॉट बैक फ्रॉम द सिचुएशन जहाँ पे बाबर के आउट होने के बाद लग रहा था कि शायद हम 200 सवा 200 भी ना करें. लेकिन वहाँ पे जो इन्होंने स्कोर तो किया, लेकिन वो जो प्रेशर बैक डाला उनकी बॉलिंग के ऊपर, जहाँ पे साउद वो प्लेड समथिंग वेरी स्पेशल.
उस जगह पे आके पावर हिटिंग उसने करके दिखाई, गैप्स में शॉट्स खेले, कैलकुलेटेड वे में बॉल टर्न हो रहा था, फंस रहा था, अंडर प्रेशर थे, बहुत शानदार बैटिंग की। तकलीफ़ होती है जब आप मैच हार जाएं ऑब्वियसली, लेकिन एज ए टीम मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की टीम इस पूरी कैंपेन की सबसे बेस्ट या बेहतर बॉडी लैंग्वेज के साथ खेली। और एक वो जो स्पेशल मैच हम चाहते हैं पाकिस्तान को, हार जाए कोई मसला नहीं, आज वो मैच था कि पाकिस्तान जीत जाता तो बहुत खुशी होती, लेकिन हार के भी हमें जो है एक तसल्ली है कि हमने अपना 100% दिया। ठीक है, गलतियाँ बीके ने हाईलाइट की, हम भी करेंगे, लेकिन सो फार जो आज हमने देखा दैट वाज वेरी वेरी गुड। वाह, वंडरफुल। आई थिंक राशिद भाई आपका भी मैं रिएक्शन लेना चाहता हूँ। सवालों का सिलसिला तो हम जरूर आपके साथ उसका आगाज़ करेंगे सभी मेहमानान के साथ, लेकिन सबसे पहले आज आपने कहा कि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाएगा, वो बात भी दर हकीकत सामने आई, लेकिन द वे वी हैव प्लेड टुडे शायद हमने मिस किया कि पिछले कुछ गेम्स में पाकिस्तान लेकिन वैसे ये नहीं खेल पा रहा था। मैच सबकी अपनी अपनी राय होती है कि अच्छा खेले हम लोग, अच्छा खेले, हमें अच्छा नहीं खेलना था, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे, भले हम बुरा कर लेते। इस वर्ल्ड कप में रहना है तो पॉइंट के साथ रहना है। तो टीम स्पिरिट बहुत हाई थी आज के मैच की, शुरू से लेके टॉस से लेके एंड तक स्पिरिट हाई थी, जो कि डिमांड थी आपकी, हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं क्या, टीम को अंडर प्रेशर थे हम लोग, लेकिन बड़ी टीम के साथ फाइट किए है ये, क्योंकि सबसे अच्छी टीम यही लग रही है ना, मारते बहुत हैं ये, लेकिन आज सेकंड इनिंग्स में स्ट्रगल करते हुए भी आपने देखा इनको, बहुत सारे चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शम्सी का लास्ट ओवर जिसमें सऊद शकील और शाहीन आउट हुए हैं, वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। वहाँ से हम 300 तक जा सकते थे, वहाँ से 2 वो आउट हुए, फिर उसके बाद आप कोलैप्स ही कर गए ना पूरे। वो तो वाइड 2-3 वाइड बॉल कर दी गिरी ने, अदरवाइज 2-3 रन और कम कर लें, तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा ये था कि 2 विकेट्स उनको और मिले और 60 रन पे वो 4 आउट करके चले गए। हम बहुत अच्छा खेले शम्सी को, और बाकी सब ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। वहाब से सवाल आता आखिर में करेंगे कि फास्ट बॉलिंग पे है, क्योंकि रिवर्स स्विंग ऐसी पूरे वर्ल्ड कप में होती नज़र नहीं आई, टारगेट पे बॉल क्यों नहीं गई है, बस ये एक सवाल है, क्योंकि आपका एंगल नहीं बन रहा था, वाइड बॉल इतनी ज़्यादा हुई है, हमने 21 एक्स्ट्राज दिए हैं, 21 एक्स्ट्राज बहुत होते हैं किसी भी मैच के लिए, और स्पेशली पहले इनिंग्स में काउंट नहीं होते, चलो हो गए, दूसरी में कैलकुलेशन होती है आपको, आपके पास इतने रन हैं, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए 15-20 रन शॉर्ट हैं, 21 रन तो आपने वैसे ही दे दिए, बिल्कुल, तो आपने फिर 50 रन शॉर्ट हो गए ना, फिर तो आप जैसे खेलते हो दिल खोल के। तो बीच में कहीं मौका मिले तो हम वहाब से ज़्यादा बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये टारगेट बॉलिंग, और अगर लास्ट 2 खेल रहे हैं, हमारी जो हमने जो सीखा, यहाँ पे शॉर्ट लेग ले लो या 45 ले लो, रन ही बनाएंगे ना, 2 बाउंसर होते हैं, उसके बाद बैट्समैन खुद ही उतर जाता है। तो ये शायद गलती हुई है बॉलर से भी, क्योंकि बॉलर के हाथ में बॉल है, वो डिक्टेट करता है गेम को, कप्तान नहीं करता, बॉलर करता है डिक्टेट। चलिए, गलतियां जो हुई हैं उसके ऊपर भी अभी हम नजर डालेंगे, बट एक तरफ साउथ अफ्रीका को obviously we have to give credit to the way they batted. Aiden Markram is the only name that pops up right now. हमने शुरू में काफ़ी बात की कि डीकॉक को कैसे बॉल आउट करना है या आपने पावर प्ले में कैसे बॉलिंग करनी है, बट एडन मार्करम ही स्टूड हिज ग्राउंड। कैसे रेट करेंगे आज उनके नॉक को, बिकॉज ही क्लियरली वाज द डिफरेंस, नॉट अ फुट रॉन्ग बाय हिम टुडे। देखिए, वो जब आए हैं ना बैटिंग करने, तो पहला दूसरा बॉल में ख्याल हारिस रऊफ का खेल रहे थे, हारिस रऊफ ने इसको कुछ कहा है, शायद वो पिच मार्करम स्पेशली पिच जज कर गया था कि इस पे आसानी से रन्स नहीं हो रहे, एंड में हमने देखा बॉल रिवर्स भी हो रहा है, किक भी कर रहा था, तो शायद वो उस वक्त जज कर गया था कि अगर मैं तेज़ रन्स नहीं बनाऊंगा तो एक ना एक बॉल ऐसा है जिस पे मैं आउट हो जाऊंगा और हम फंस जाएंगे। तो अब जब हम देखते हैं इस इनिंग्स को तो वो समझ आती है कि वाकई उसकी प्लानिंग कुछ और थी। जब हम मैच देख रहे थे तो स्कोर बोर्ड देखें, अगर आप रन्स देखें तो हम कहें यार इसकी अभी ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन वो डिफरेंटली सोच रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पे आपने मार्करम की बात की, मैं जरा थर्ड हाईएस्ट की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। उनके स्किपर की आज वापसी, उन्होंने 4 चौके लगाए आकर, इवन दो दैट वाज अ क्विक इनिंग एज वेल, बट नवाज को जिस तरह से उन्होंने डील किया अर्ली ऑन पहले ओवर में, आई थिंक दैट वाज डिस्ट्रक्टिव फॉर पाकिस्तान टू एज वेल। मैं जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बबूमा से यूजुअली हमने इस वर्ल्ड कप में यही देखा है कि ऑड 30, 36, 35, 28 कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट ओवरऑल जहां हमने बाबर की कप्तानी की बात की, मैं चाहूंगा कि आप बबूमा जैसे आज खेले और जैसे आज कप्तानी की उसके ऊपर भी जरूर रोशनी डालें।
यार क्योंकि जीत गए तो तारीफ करनी पड़ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे भी गलतियाँ काफ़ी हुई हैं जी। जो ज़्यादा स्पेशल इनिंग्स है, लाइक ठीक है आप मुझसे बुमा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैच को हमसे दूर लेगी वो मिलर की इनिंग्स है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एट दैट स्टेज जितना टर्न हो रहा था, जैसे बॉल रिवर्स हो रहा था, जिस तरीके से उसने जो पार्टनरशिप लगाई है और बड़े कंट्रोल के साथ खेला है, दैट इज़ समथिंग जहाँ से हमारा मैच थोड़ा दूर हुआ। क्योंकि वहाँ पे अगर एक विकेट हमें उस वक्त मिलता तो इनकी ये वाली टेल बहुत लंबी जो है वो साबित होती। लेकिन कुछ हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर जिसमें शुएब अख्तर की बात कर लें, वसीम वकार पहले बहुत ज़्यादा ये काम कर चुके हैं। फिर मैंने अपने दौर में देखा उमर गुल को, जब बॉल रिवर्स हो रहा है, इतना रिवर्स हो रहा है, तो आप विकेट स्टंप से बाहर क्यों जा रहे हैं? यू हिट द स्टंप्स, इफ यू मिस यू गेट हिम आउट। आप लेग भी फोर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इनसाइड एज लग के कुछ हो सकता है, लेकिन जब आप क्योंकि हारिस रऊफ और वसीम ये स्पेशलिस्ट हैं टू बॉल इनटू द स्टंप्स एंड गेट अ विकेट बाय यॉर्कर, लेकिन वो आज नज़र नहीं आई, जो थोड़ी सी कमी है। और इतना टर्न हो रहा हो और वहाँ पे कोई आपको 10 ओवर में या 8 ओवर में 50 कर जाए तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, लाइक आई एम नॉट बॉलिंग वेल। एग्जैक्टली मैं ज़रा इस मौके पे एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे, जो राशिद भाई ने वहाब भाई के लिए सवाल रखा है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी ज़रूर एड्रेस करना चाहेंगे। हफीज़ भाई ने भी अभी उसी को अलूड करने की कोशिश की। ज़रा एक छोटे से वक्फे के बाद राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की। व्हाट अ क्लोज गेम वी विटनेस्ड। इन द एंड इट वाज साउथ अफ्रीका जिन्होंने सबको ये शो किया है कि चेस करते हुए भी दे कैन होल्ड ऑन टू देयर नर्व्स। उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं बैटिंग के अंदर, जिसकी हमने काफ़ी बात की है, नॉट जस्ट देयर इन फॉर्म बैटर्स बल्कि उनके जो नंबर 8-9 पे आने वाले बैटर्स भी हैं, उनकी भी इस तरह की फॉर्म है और उन्होंने भी जैसे एंड के वो ओवर्स को होल्ड आउट किया, आई थिंक फिनोमिनल टू वॉच। और पाकिस्तान फैंस के लिए थोड़ा अपसेटिंग ज़रूर होगा, लेकिन अभी भी मैथमेटिकली पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए। यहाँ पे जो है क्या सिनेरियोज बनेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट अगले मैचेस ना सिर्फ जीतना ज़रूरी है, न्यूजीलैंड के लिए भी पाकिस्तान अब ये होप करेगा कि अपने अगले मैचेस वो हारें। और तगड़ी तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया लग रही है, साउथ अफ्रीका, इंडिया तो ऑब्वियसली लग रहे हैं, स्पेशली वो जो आखिरी मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया उस मार्जिन से। लेकिन न्यूजीलैंड जो है इस वक्त उनके अगले मैचेस हारना इम्पॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान टू गो थ्रू। हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ अभी जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट जो हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने एक सवाल थ्रो किया था वहाब रियाज की तरफ, उनकी तरफ दोबारा आते हैं। जी राशिद सर। हाँ, बात यही है कि जो बॉलिंग की बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग इतनी नहीं देखी, मिस टारगेट लगा थोड़ा सा ना, बहुत सारी बॉल की, ये नहीं है कि एक ही ओवर किया, 3-4 ओवर लगातार हुआ है, हारिस ने भी किया है। तो रीज़न क्या हो सकती है और उसका बेस्ट वे क्या है? देखिए राशिद भाई, जब बॉल पुराना हो जाता ना तो कंट्रोल बॉलर के पास ज़्यादा आ जाता है। और जब रिवर्स स्विंग मैं भी करता था, जिस तरह हफीज़ भाई ने गुली भाई की और बाकी सब की एग्जांपल्स दी, जब मैं भी रिवर्स स्विंग करता था तो मुझे आइडिया होता था कि मेरा कितना रिवर्स हो रहा है और मुझे कौन सी लाइन से बॉल को करना है या किस जगह से मुझे अटैक करना है। जो आज हमने देखा, ये काफ़ी प्ले एंड मिस जो ये इनका हुआ है कि इन्होंने बॉल की और ज़्यादातर टांग से वाइड हो गए हैं या पैडों में जाके लगी और लेग स्टम्प के बाहर, ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉबेबली व्हाट आई कैन सी इज़ कि हम लेग स्टम्प उड़ा दें, शुरू हो हमारा मिडल एंड ऑफ से शुरू होकर लेग स्टम्प पे फिनिश हो। लेकिन इनको शायद ये आइडिया नहीं हुआ कि जो बॉल है वो कितना रिवर्स हो रहा है, कितना लंबा हो रहा है, कितना किस जगह से शुरू करना और किस जगह पे ख़त्म करना है। यूजुअली जो हमने सीखा अपने सारे सीनियर्स बॉलर से, वो ये सीखा जब रिवर्स होना शुरू हो जाता है तो यू शुड हैव एन आइडिया कि अगर आपने ऑफ स्टम्प हिट करनी है तो आपका बॉल कितना ऑफ स्टम्प से बाहर फेंकना है आपको, ताकि उसको जितनी एयर मिलेगी, जितना वो रिवर्स होगा, वो जाके फिनिश कहाँ पर होगा। प्रॉबली दे वर ट्राइंग के हम डंडा उड़ा दें, विच दे मिस के या तो
देखिए ये देखना बहुत ज़रूरी है उसमें कि अगर आप विजुअल्स देखेंगे क्या वो विद इन द क्लोज टू द स्टम्प्स बॉलिंग कर रहे हैं या वाइड ऑफ द स्टम्प्स बॉलिंग कर रहे हैं, मिड से कर रहे हैं। अगर आप क्लोज टू द स्टम्प्स कर रहे हैं एज अ राइट हैंड बॉलर, अगर आप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफ स्टम्प करें तो फिर आपको, जब आप क्लोज टू द स्टम्प्स है तो फिर आपको ऑफ स्टम्प से बाहर बॉल को फेंकना है, सही, विकेटों में नहीं फेंकना आपको ऑफ स्टम्प के बाहर को बॉल फेंकना है। उसकी वजह यह है कि जब बॉल बाहर जाएगा उसको एयर मिलेगी तो वो टेलिंग करेगा अंदर, तो वो ऑफ स्टम्प पे, मिडिल स्टम्प पे फिनिश होगा। अगर आप मिड से कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना, फिर आपको थोड़ा बीच में से करना, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको थोड़ा सा जो है आपने वैसे ही रूम बना लिया कि यार आपका एंगल यूटिलाइज कर रहे हैं। ये लोग विद इन द स्टम्प्स, क्लोज टू द स्टम्प्स बॉलिंग नहीं करे, वाइड ऑफ द स्टम्प्स बॉलिंग करे, जिसमें एक एंगल ऑलरेडी क्रिएटेड है, और उस एंगल में जब आप बॉल फेंक रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो वो बॉल जब फिनिश होगा तो वो टांगों में या टांगों से बाहर फिनिश होगा। सो प्रॉबेबली जब आप बीच में से भी बॉलिंग कर रहे हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अक्सर हमने सीखा कि वो कहते हैं यार आप कीपर का जो ये है राइट लेग है, अगर आप राइट हैंडर पे कीपर ऐसे कर रहा है तो आप उसको यहाँ पे एम करो उसके पाँव को, क्योंकि वो विकेटों के बाहर नहीं खड़ा होता या विकेटों के पीछे नहीं खड़ा होता, वो विकेटों से थोड़ा सा इधर खड़ा होता है, विच गिव्स यू एन आइडिया कि यार अच्छा अगर मैं कीपर की तरफ बॉल कर रहा हूँ, उसकी टांग की तरफ एम लेके बॉल कर रहा हूँ, अगर मेरा बॉल अंदर भी आता है तो मिडल एंड ऑफ पे ही खत्म होगा मैक्सिमम। एग्जैक्टली, आई बिलीव जहाँ पे हम शायद बात कर रहे हैं अभी, ऑब्वियसली वो सर्टनली दैट एक्सपीरियंस टू बी गेज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन उसको फिर अप्लाई करना इज समथिंग दैट इज सर्टनली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं ज़रा एक और भी बात करना चाहता हूँ, बाजिल भाई की जानिब बढ़ता हूँ। बाजिल भाई, जब हमें पता था कि हारिस के लिमिटेड ओवर बाकी है, 1 ओवर या 2 ओवर्स बाकी, शाहीन का 1 ओवर बाकी, 1 ओवर उन्होंने उससे पहले बड़ा ही उम्दा कराया, तो डोंट यू थिंक दैट इट वाज अ बेटर आइडिया हमारे लिए ये होता जो अभी वहाब भाई ने अलूड किया कि यार आप अगर हम ऑफ स्टम्प की बात करते हैं या मिडिल स्टम्प की बात करते हैं वहाँ आप फिनिश कर रहे होते, रादर देन गोइंग फॉर अन एक कॉट बिहाइंड की जो हम कोशिश में लगे रहे कि शायद हमारे पास यहाँ से चांस होगा, रादर हम विद इन द विकेट्स बॉल करके चांस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पुराना बॉल जो रिवर्स स्विंग होता है वो ज़्यादा पोटेंट वो होता है जो अंदर की तरफ आ रहा हो, कोई भी बॉलर हो, जो आउट स्विंग है वो उस जोर से नहीं जाता, उस तरह नहीं निकल, नया बॉल निकलता लेकिन पुराना बॉल नहीं निकलता। और प्लस जब आप इस सिचुएशन में जब टेल एंडर खेल रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने बीच में बॉल करने हैं। वो आप जो कह रहे हो कि बीट हो रहे हैं, बीट चलो हो गए, लेकिन जो बॉल ज़्यादा जो बॉल गए हैं वो लेग स्टंप पे गए, जो लेग बाय हुए हैं और जो टांग से वाइड हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं। बिल्कुल, तो उससे जाहिर है आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी आपने जो मिल रही है वो आपने कम कर दी है। वसीम का भी बॉल गया है, हारिस रऊफ का भी बॉल गया है, और उस सिचुएशन में अगर आप 2-3 बॉल बीच में कर जाते तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी आउट स्विंग का, उस वक्त आउट स्विंग करना या टेल एंडर को वो भी रिवर्स स्विंग करना वो समझ नहीं लगती थी। एग्जैक्टली, यहाँ पे राशिद भाई अब सवाल जो है वो हमारे टॉप ऑर्डर का भी बनता है। अनफॉर्चुनेटली शायद अब्दुल्ला तो वन ऑफ इनिंग्स में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान वंस अगेन 50 के 50 ओवर्स नहीं कंज्यूम कर सका फॉर अ गेम विच वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। वी कुडंट रियली डू दैट। जहाँ आपने 21 एक्स्ट्रास की बात की वहाँ हमें शायद उन डिलीवरीज की भी बात करनी पड़ेगी जो हमने फेस ही नहीं की। तो फॉलो विकेट भी आपको दिखाऊंगा, प्लीज उसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए थोड़ा सा ये भी सीखने का चीज़ होती है, हम बहुत सारी बातें करते हैं, सिंगल लेने, डबल लेने, पावर हिटिंग है, बाउंड्रीज हैं, लेकिन पूरे ओवर खेलना ये भी एक आपके टीम को आना चाहिए। बहुत दफ़ा होता है हम भी आउट करते हैं और हम आउट भी हो जाते हैं। वो एक आउट होने के बाद एक वो वाहिद प्लेयर था जिसको मुझे लगता था कि ये सोचना चाहिए था, प्लान करना चाहिए था कि मैंने यहाँ से 50 ओवर तक रिस्क फ्री क्रिकेट खेलनी है। 50वें ओवर में मैं ब्लाइंड अगर खेल लूँ तो खेल जाऊँ, लेकिन मैंने 50 ओवर तक, वो जो बीके बात कर रहे हैं, हम सबको वो तकलीफ है कि वी लेफ्ट दोस 20 बॉल्स नॉट टू बी यूटिलाइज्ड। तो वो जो 20 बॉल है अगर उसके ऊपर आप 18 रन भी करते, 15 रन भी करते, तो वो ऐड होते हैं ना, वो जो आप कह रहे हैं हमेशा कि 15 रन हम थोड़े कर हमेशा शॉर्ट होते हैं 15 रन, वो तो कभी खत्म ही नहीं होने। वो तो जब आपने किसी के ऊपर तो डालना है तो 15 रन हमेशा दिमाग में रहेंगे। तो जब आपको मिल रहे थे आपने क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं, मोहम्मद वसीम पिछले 3 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ एज एन ऑलराउंडर कहा जाता उनको। मैं ये हैरान हूँ कि यार आप अगर वहाँ पे मौजूद हो और अभी 3-4 ओवर पड़े हुए हैं तो आपका काम ये है कि सिर्फ छक्का मारना आपको आता है, उसके अलावा आपके अंदर वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, प्लेइंग इन द गैप, प्लेइंग लाइक स्ट्राइकिंग द बॉल इनटू द गैप एंड गेटिंग बाउंड्रीज, वो नहीं है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी मैंने देखी हैं जिसमें नवाज ने विकेट थ्रो की, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम हिम। इफ्तिखार ने जिस तरीके से अपनी विकेट थ्रो की, ठीक है आप ऐसे ट्रैक के ऊपर आउट भी हो जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम अगर आपको ऐसी बारी मिले तो फिर आपको अपनी उस बारी को बड़ा करना चाहिए। तो आप या तो आप आते आउट हो जाए,
जब आपने 20-30 रन किए हुए हैं जी तो फिर तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है एंड यू थ्रोन इट अवे। जी अच्छा, बैटिंग के ऊपर अभी आपने जिस तरह नवाज को पॉइंट आउट किया उनकी गलतियां, या शादाब की तारीफ भी आपने की, ओपनर्स हैव बीन अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड कप, इससे पहले से आप एशिया कप देख लें, अफगानिस्तान सीरीज देख लें, फखर का प्रॉब्लम था, एक कॉल ली गई उनको रेस्ट कराएगा। अब इमाम उल हक, डू यू थिंक यहाँ पे एक और कॉल लेनी ज़रूरी है, कोई फैसला होना चाहिए? व्हाट इज़ रॉन्ग विद इमाम उल हक कि वो कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड कप में इम्पैक्टफुली, जहाँ पे टीम्स के ओपनर्स जो हैं वो पूरे पावर प्ले आराम से खेलते हैं, बाद में जाके फिर करते हैं एक्सेलरेट, क्या गलती कर रहे हैं इमाम उल हक? देखें, इमाम हर इनिंग्स में अगर आप देखें तो वो 15, 20, 25 रन के पास जा रहे हैं, 40 भी उन्होंने किया, लेकिन ये वो इमाम नहीं है जो हमने बायलैटरल सीरीज में खेलते देखा है। ये अपने आप के किसी खौफ में हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी जगह पे अपने जोन में घुस गए हैं। नहीं तो इमाम कंसिस्टेंट हैं मोस्टली 50 एंड 100 करने में, लेकिन अभी तक जो 5 इनिंग्सें देखी, पहली 2 इनिंग्सों में इनको ट्रैप किया गया बाय बॉलिंग द बाउंसर्स। इमाम को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक खेलना है तो फिर अपने थॉट्स को क्लियर करे। अगर उसके अपने ही जोन में रह के क्रिकेट खेलनी है जिसमें वो कामयाब रहा है तो फिर यार वो खेल ले, लेकिन 20-20, 30-30, 40-40 करके अगर आप जैसा वो प्लेयर जो हमें लगता है कि टॉप रैंकिंग के अंदर मौजूद है, और आपकी रैंकिंग भी ये बताती है आप टॉप प्लेयर हैं पाकिस्तान के, और अगर आपको 5 ऐसे मौके मिलें जिसमें आपको स्टार्ट मिले और आप बड़ा स्कोर ना करें, 50 ना करें, तो देयर समथिंग रॉन्ग मेंटली। राशिद सर, आपका मैं इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगी, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इमाम उल हक? ओपनर परफॉर्मेंस जैसे हफीज़ ने कहा बहुत अच्छी रही इनकी, लेकिन साथ में एक बैट्समैन होता था, वो फ़खर जमान था, वो गेम को चलाता था पूरे को। बिल्कुल। जब से वो गए या उनकी बैट फॉर्म हुई तो इनकी भी साथ में ये कैरी कर रहे हैं। हम थ्रू आउट एशिया कप अगर देखते हैं, वहाँ की 4-5 इनिंग्स निकाल रहे हैं, 4-5 हम याली इनिंग्स निकाल लेते हैं, तो नज़र आ रहा है कि इनको प्रॉब्लम हुआ है उनके ना होने से। अब्दुल्ला अच्छा खेलते हैं, मैंने सुबह भी बात की थी, मैं खुद भी देखा है इनका, यहाँ पे उनको बॉल की जाए यहाँ रन नहीं बना रहे। इनका 50-52 का इनका स्ट्राइक रेट इधर है, ऑन साइड या बीच में जो बॉल मिलती है इसको तेज़ी से खेलते हैं, 100 का हो गया। तो अगर यहाँ पे वो ब्लॉक हो रहे हैं तो सामने वाला बैट्समैन वो खुद ही इस तरह से खेलता है, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है। जहाँ इनको बाहर या पीछे बॉल मिलेगी ये रोक नहीं सकते। तो यही चीज़ की है साउथ अफ्रीकन ने, मार्को जॉनसन या कोइंजे को देख लें, वो बॉल करते ही पीछे हैं और हमारे प्लेयर एक ही जगह मारते हैं। यहाँ पे आपने देखा मार्कर ने एक छक्का मारा है, उसे स्लाइस ऊपर से किया और वहाँ पे मारा, वहाँ क्यों नहीं मार सकते हम लोग? बिल्कुल ऐसे मारना चाहिए ना, हम एक ही जगह मारते हैं। लेकिन अब्दुल्ला का शॉट ये बहुत पक्का है, ये हल्का नहीं है, ये मारता है। और लगते भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखें फ्रंट पे मारे थे, ये बाउंसर की हाइट बहुत अच्छी थी, शॉर्ट ऑफ लाइन के लिए बहुत अच्छी थी, यहाँ पे शोल्डर पे आई, वो छोड़ नहीं सकता था, मार सकता था। लेकिन इमाम का ये है कि उसको अपने शेल से निकलना पड़ेगा। अगर वो तेज़ खेलें, वो तेज़ भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है, चौके मारते हैं वो ऑन साइड, उनको जो बीच में यहाँ पे आ जाते हैं, बाहर की बॉल को भी वो स्क्वायर लेग और अंदर बहुत चौके मारते हैं, उनको देख लीजिएगा आप, बाहर की बॉल को भी। तो वो अपने आप को खुद रोका हुआ है उन्होंने, शायद मुझे ये लग रहा है प्रॉब्लम उनको खुद निकलना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम आती है ना, किसी दिन बैट्समैन जो होता है ना बोलता है यार मैं अपना गेम खेलूंगा, जब लगना शुरू होती है ना तो वो अलग ही प्लेयर होता है। True. जब उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर वाले गेम्स हैं, और इन्होंने खुद भी अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ है। एक प्लेयर नहीं, काफ़ी प्लेयर। अगेंस्ट अफगानिस्तान देखें आप, बाबर आजम के ऊपर भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, हालांकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, एंजॉय करते हैं गेम को। लेकिन इस इन मैचेस में आज हमारी थोड़ी सी अच्छा, मतलब कि बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं या बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिर में ये कि इमाम को करना पड़ेगा, अभी शेल में से बाहर आना पड़ेगा, बाहर और आना अब्दुल्ला के पड़ेगा। साथ खास तौर एक पे सवाल है मेरा राशिद भाई, अगर आपकी मैनेजमेंट ये सोचती हो कि जिस तरीके से इमाम खेलता है, इसका 190 गेंदों पे 100 या 85 गेंदों पे 100 जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा टीम के लिए, और क्या अगर ये 90 या 95 गेंदों पे 100 करता है तो अगला 50 या 30 गेंदों पे कर देगा, 25 गेंदों में कर देगा, तो इससे भी प्लेयर के कोई फ़र्क पड़ता है माइंडसेट पे? देखो फ़र्क वहाँ पड़े ना जहाँ पे ये करें। अगर एक आध मैच में किया होता तो हम 3 मैच में हम बॉल छोड़ के आ रहे हैं, अभी हमने बात की है, ये करेंगे तो पूरे 50 ओवर खेलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बैटिंग आपकी ऐसी बैटिंग पिचेस के ऊपर जो नीचे वाले बैट्समैन वो अच्छा करेंगे, तो इमाम वैसा खेल नहीं रहे जैसा आप बोल रहे हैं। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ वैसे कि खेले मुझे
मेरे मुताबिक कोई एक ऐसी खबर मेरे पास थी जिस पे अच्छा ये था कि कहा गया था कि जी ये अगर 100 करते हैं 90 गेंदों पे या 95 गेंदों पे वो तो ठीक है, लेकिन अगला 50 करेंगे 25 गेंदों पे तो तब तो इनकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। अगर नहीं है करते तो वो मॉडर्न mostly डे player- एरा के साथ फिर ये चल नहीं सकते। Mostly- एंड दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न कि जिस वजह से इमाम को जिस तरह भी हफीज़ भाई ने बात की है या आप बात करें कि ही गेट्स द स्टार्ट, तेज़ खेलने की कोशिश कर रहा है एंड देन ही इज़ गोइंग फॉर एवरीथिंग व्हिच इज़ नहीं यार, नेचुरल नॉट लेकिन वो फखर वाली बात राशिद भाई की बड़ी तेज तो खेल ही नहीं रहा। बिल्कुल वो तो अपने शॉट रोक के बैठा हुआ है, जो उसके पक्के शॉट हैं। आज निगीडी के पहले ओवर के अंदर उसको एक बॉल मिला, द बॉल वाज देयर टू हिट एंड पंच इट फॉर अ बाउंड्री, बट उसने बिल्कुल हल्का सा यूं बल्ला लगाया। तो शॉट अभी तक मैंने जो देखा है, आज भी देखो उसने 12 रन किए 18 बॉलों पे, ऐसे ही है। तो वो शॉट रोक रहा है। शॉट खेल रहा होता तो बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ क्योंकि पे normally- सॉरी हमारे सुबह वाले शो में बीके ने भी एक बात मेंशन की थी कि जिन कंडीशंस में बाउंस ज़्यादा होता है प्लेयर्स के अंदर, वो कॉन्फिडेंस होता है टू क्लियर द बाउंड्रीज एंड टू गो फॉर द सिक्सेस। डू यू थिंक कि यहाँ पे वो वाला फैक्टर भी है कि मे बी ही इज नॉट नहीं, कॉन्फिडेंट? वो पावर हिटिंग की बात हो रही थी, वो कुछ और बात हो रही थी कि पावर हिटर्स कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा और किन कंट्रीज़ में नहीं आ रहे। तो जहाँ पे ट्रू बाउंस पिचेस हैं वहाँ से ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं कि वहीं से पावर हिटर्स आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो टीमें स्ट्रगल करी, इंडिया भी वहाँ से भी, मतलब लेकिन वो कन्वेंशनल भी खेलते हैं लेकिन वहाँ बॉल बाउंस अच्छा बल्ले पे आता है। पाकिस्तान, श्रीलंका देखें आप, जहाँ पे लो बाउंस हो रहा है, अभी तक उस फ्रीक्वेंसी पावर हिटर नहीं आ रहे। तो एक फैक्टर शायद ये भी हो सकता है। इमाम की आप बात करें, फ़खर वाली बात ठीक है इमाम की, लेकिन काफ़ी बायलैटरल्स को आप निकाल दें। वर्ल्ड कप का प्रेशर और है। वर्ल्ड कप इज़, हम कहते हैं कि बायलैटरल भी वही है, वर्ल्ड कप भी वही है, वो नहीं है। वर्ल्ड कप इज़ समथिंग डिफरेंट। जब आपने 7, 8, 9 मैच खेलने हैं अगेंस्ट टॉप ऑपोजिशन, डिफरेंट वेन्यूज, टॉप प्लेइंग 11, जी ये नहीं है कि वो उन्होंने अपने प्लेयर रेस्ट करने। वर्ल्ड कप में कोई प्लेयर रेस्ट नहीं कर रहा। तो उसमें परफॉर्म करना और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दैट सो बायलैटरल को, आजकल की बायलैटरल को आप साइड पे कर दें। आजकल की इंग्लैंड की बायलैटरल को भी आप साइड, इंग्लैंड की भी ये बात हुई है, वो बायलैटरल में जो परफॉर्म करे उसको साइड पे कर दें। ऑस्ट्रेलिया जो बायलैटरल में परफॉर्म करे उसको साइड पे कर दें, क्योंकि 90% जो बायलैटरल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अब हो रही है उसमें आपके टॉप प्लेयर्स नहीं खेल रहे। टॉप प्लेइंग 11 खेल ही नहीं रही। तो जो आप इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं वो आपके पास तो इधर ऑप्शन नहीं है ना कि नहीं जी उसको रेस्ट करा दो अगले मैच में, ऐसे तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसकी जो क्वालिटी डिफरेंट है, प्लस प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये शॉट जो रोकने की बात कर रहे हैं ना, दैट इज मोर टू डू विद प्रेशर देन एनीथिंग एल्स। राइट। जो बल्ला, जो हफीज कह रहा है ना कि जी ये इसको बॉल मिला था क्यों नहीं मारा, दैट इज नथिंग टू डू विद कि इमाम की टेक्निक, इमाम खेल नहीं सकता, नथिंग टू डू विद दैट। That is the pressure of the World Cup. Pressure of the World Cup. I want to talk more about that. यहाँ पे एक short and sweet break का time हुआ है. When we come back, a bit more to talk about on Game On है. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Certainly, we are making sure that we try to kind of give you what you needed in terms of जब हम खिलाड़ियों की बात करते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा बाबर आजम, किंग बाबर आजम के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि whether the team is performing or not, this is this one gentleman who's making sure as a player, as that one individual, that he contributes to number 3. मैं ज़रा हफीज़ भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हफीज़ भाई, वो प्रेशर सिमिलर है जो इमाम के ऊपर है, शायद हमने बात की, मैं मजीद उसकी और तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमने उनको सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाते हुए मल्टीपल ओकेजन्स पे देखा है। इफ़ नॉट दैट, अब अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, ही इज़ बीन टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिटेनिंग द नंबर 1 ODI player for himself. I think that's great, but it's not going to win us any trophy. It's not going to win us any cup. बाबर आजम्स today not, अब वो बाजिद भाई ने एक दफ़ा कहा कि यार बाबर जब ऑड 40 करता है, 45 करता है ना, तो ये हमारे लिए खबर इसलिए होती है क्योंकि अब वी आर सो यूज्ड टू 70 करेगा, 80 करेगा या 100 करेगा। डू यू थिंक दैट बाबर शुड हैव कैपिटलाइज्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, अपनी निफ सेंचुरी को सेंचुरी में कन्वर्ट करते? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि बाबर भी अपने जो कि आउट होने का जो मसला है वो ये है कि वहाँ से बाबर ऐसे आउट होते नहीं हैं, क्योंकि जब आपने 50 रन कर लिए, नॉर्मली बाबर ऑलवेज गो फॉर 100,
जी। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जब वो चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती, बाबर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट इन दैट जोन कि वो सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन वो जो मोमेंट्स जीतने वाला एक एरिया है जहाँ पे इनके वो मोमेंट्स जीतने थे, या आज बॉलिंग में रिवर्स स्विंग का मोमेंट जीतना था, नवाज ने आखिरी बॉल स्टंप्स में करने की मोमेंट जीतनी थी, वी आर नॉट विनिंग दोज मोमेंट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद और मजीद कैपिटलाइज करने की जरूरत थी। अब जरा डाउन दी ऑर्डर आते हैं, राशिद भाई आपके साथ भी तस्करा करना चाहूँगा, जहाँ हम सऊद की बात करेंगे, यहाँ पे मैं शादाब की भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक गुड ओमेन हमें जरूर नजर आया डाउन दी ऑर्डर अपनी बैटिंग के अंदर, क्योंकि अगर वो सस्टेनेंस भी ना नजर आती तो शायद पाकिस्तान वुड हैव बीन इन डीप वाटर्स। जहां अब हम 40.4 ओवर्स की बात करें, शायद वो हम 40 ओवर से पहले ही वापस जा रहे होते अपने डग आउट की जानिब। यहाँ मैं जरा जेंसन की बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से ही बोल टू शादाब इज समथिंग दैट व्हाट यू टॉक अबाउट। में सबकी बात कर लोगे सर, अब बात ये है कि जिस बाबर की मैं फिनिश कर दूं। बाबर ने स्वीप मारी है, ठीक है ना, गलत शॉट है उनके लिए गलत शॉट है। मारी किसको? जिसको रीड नहीं कर पाते। जब जिसको रीड नहीं करते हम उसको हमेशा बगैर देखे जोर से मारते हैं। आप इससे पहले नूर को कौन आउट हुआ? बाबर नहीं, रिजवान और अब्दुल्ला, उन्होंने स्वीप मारी ना, जोर से स्वीप पे आउट हुए वो लोग। तो क्या है कि जहाँ पे आपको रिस्ट स्पिनर नहीं पता चल रहा, उसको जोर से स्वीप मार रहे हैं आप लोग कि मैं बॉल को निकाल दूं, 1 रन ले लूं या चौका मार दूं। तो वहीं पे आपको ये चीज़ मिसिंग है बहुत सारे प्लेयर्स में, सिर्फ बाबर नहीं। जहाँ पे ये रिस्ट स्पिनर आता है तो वहाँ पे ये मार के आउट हो जाते हैं। जब भी 4 विकेटों वाली बॉलिंग नहीं की उन्होंने, आज हमने 4 विकेट दिए, 70 रन बन सकते थे। बाबर को यहीं से निकालना था, आराम से निकाल सकते थे, दूसरे एंड पे खेल लेते। जब आपको एक एंड से रन नहीं मिल रहे, दूसरे एंड को टारगेट करते आप। कोई भी बॉलर होता है, बाबर ऐसा प्लेयर है, टारगेट कर सकते हैं वो, क्योंकि रीड कर रहे हैं उसको, लेंथ को भी पता चल रहा है, उसको मेजर कर रहे हैं और बॉल को भी रीड कर रहे हैं। अगर ऑफ स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर को, उन्होंने अगेंस्ट द ब्रेक मारी महाराज को। तो ये गलती हमारे प्लेयर्स ने की है और मेरे ख्याल से यही हमें एक प्रॉब्लम लग रही है कि बहुत ज़्यादा जल्दी उस बॉलर पे कर रहे हैं जहाँ पे बॉल आपको रीड नहीं exactly, और नेचुरली जो कॉम्सवॉल्स में उस टाइम जी स्पिनर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इफ्तिखार भी जो आउट है वो गुगली हुआ है तो खड़ा हुआ है, वो उसको नहीं रीड हुई। स्पेशली जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है वो शायद दुनिया में किसी को रीड नहीं, लेकिन हमें उसका गुगली बिल्कुल नहीं रीड हो रहा। वो तो अफगानिस्तान को पता नहीं किसने बताया, शायद राशिद भाई की बात की कि नूर अहमद को खिलाओ, वो तो खिला नहीं रहे थे। जो गुगली हो रहा ना वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर का किसी को, मेरे का शायद शादाब को पिक हुआ है, जो मैंने आज मैं देखे शादाब को पिक हुआ है, बाकी किसी को पिक नहीं हुआ। फिर कप्तानी की बात हुई ना, तो ये राशिद भाई ने बताया कि उसने आउट किए, एक उसने ओवर किया 43rd शमसी ने, और एक ओवर किया 45th जहाँ पे उसने आउट किए। तो अगर आप उसकी बुमा की कप्तानी को थोड़ा सा अगर क्रेडिट देना था तो इधर दें कि उसने शमसी को लेट रखा, कि उसको पता था कि अगर टेल आएगी तो ये तो बैटर्स नहीं पिक करे, लेकिन इसको एंड में रखो कि ये टेल को रैप अप। एग्जैक्टली, बाबर की बात भी यहाँ पे मैं रैप अप कर देता हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी बैट्समैन हैं वो स्पिन पे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलिंग। और अगर आप देखें तो आज माकरम को उन्होंने सर्कल के अंदर बॉलिंग कराई और वो ही इज़ अ नॉन रेगुलर बॉलर जिसको 4 ओवरों में 20 रन हुए हैं सिर्फ। मैं सिर्फ इसी चीज़ को कहता हूँ, 3 टीमों ने हमारे खिलाफ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर खिलाए, तीनों कामयाब है। बिल्कुल। तो वो जो बाबजीत भाई बात कर रहे हैं, इंडिया, नूर और आज शमसी, और ये बाकी टीमों के खिलाफ ये 2 बंदे नहीं खेल रहे, ना नूर खेल रहे ना शमसी खेल रहे हैं। और जो इट मींस वी ऑलरेडी गिवन देम समथिंग कि यार हमारे खिलाफ ये खिलाओ, हम तो 2-3-4 आउट हो ही रहे हैं। ये मैचअप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और पिकिंग द गुगलीज और शादाब की हमने बात की, ये थोड़ा सा पॉजिटिव आज के मैच में जरूर नजर आया उनकी बैटिंग। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की, जो डिफीट हुई उसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की, और अब आई थिंक हमें रैप अप करना चाहिए। इट वाज नॉट पाकिस्तान डे इन द एंड, लेकिन दे डिड प्ले
fighting cricket. Shahzad, I think that's the takeaway from today's match. Exactly, and you know, from here onwards, ladies and gentlemen, the only thing we are going to say to them is fly, stay strong. I think these are the well wishes that we're going to give them as well. But best of luck to Team South Africa as well, and congratulations. From here onwards, tomorrow, certainly we have to come back. Is it today or tomorrow? We certainly didn't take a good look at our watches as well, but it's going to be a double header. So the first game, which is going to take place at Dharamshala, Roha, will be in between Australia and New Zealand, and certainly all the Pakistanis out there will be wishing that, you know, that it's going to be a tough contest for New Zealand. But certainly, you know, the similar flags are going to come together again in Dharamshala in this 2023 World Cup. But moving on from here onwards, ladies and gentlemen, there'll be another game as well. Roha, why don't you tell us about both the teams? It's going to be in Kolkata between Netherlands and Bangladesh. तो ये चारों टीम्स जो कल एक्शन में होंगी शहजाद, it is very important for them to win these games, win those points. पर खास तौर पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला जो कॉन्टेस्ट है, I think all of the Pakistan fans will also be glued to their TV sets, and similarly for the game later on. तो खैर कल सुपर सैटरडे है जी, डबल हेडर, another full packed day for all cricket lovers. Make sure you tune into PTV Sports and follow Game On है. और जाने से पहले ऐसा हो नहीं सकता कि हम ये गिफ्ट ना आप लोगों का विनर अनाउंस ना करें, बिकॉज एज ऑलवेज हमने आपसे आज भी J. क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, और वो क्वेश्चन था who is going to be the leading wicket taker of today's match. And that happens to be Mr. Tabraiz Shamsi today, you know, who was very destructive against Pakistan. But ladies and gentlemen, the winner for the J. question of the day happens to be Mohammad Fahad. वो भी हमारे शहर इस्लामाबाद से। तो फहद, आपको J. की जानिब से रूलर जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। ये वैसे मुझे भी एक मिलना चाहिए था, बिकॉज मैंने भी तब्रेज़ शम्सी का नाम लिया था। हो गया आज, अच्छा खेल गया वो, चाहते नहीं थे हम जिस तरह उन्होंने खेला। बट फहद, आपको मुबारक हो, आप ये परफ्यूम जीते हैं, और इसी तरह हमारे शो के साथ आप लोग इंगेज करते रहें, रोज़ अपने क्वेश्चंस भेजते रहें, और गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करना यहाँ पे ज़रूरी है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर एस्टीम्ड ट्रांसमिशन ऑन PTV स्पोर्ट्स। हम सुबह रिग्रुप करेंगे, कल बड़ा एक्शन है, हम सबके इंतज़ार करेगा, और अपने पैनल के साथ हम वापस हाजिर होंगे PTV स्पोर्ट्स पे टुमारो मॉर्निंग फॉर ऑल द एक्शन ahead of the Super Saturday double header. Shahzad, I think यहाँ पे we need to sign off. So for everybody who's out there, ladies and gentlemen, look after yourselves. 1, 2, 3, game on है.